Hello students, today I am going to explain the exercise of the chapter number 4, that is the metal and the non-metal. See, this is the very most important chapter. In this chapter, the explanation of the metal and non-metal I am going to explain. See, the first question is that which of the following can be beaten into a thin sheet? The right answer is a zinc. Why? Because जिंक हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी मीन्स कि इसे जितना पीटा जाएगा वो उतना वो फैलता जाएगा. और another thing is that phosphorus, sulfur and oxygen, these are all non metals, whereas zinc is a metal. और मेटल के अंदर ही मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है. सी द क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताना है ए बी सी डी. द राइट आंसर इज द जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. यानी कि पतले तार मेटल्स के बनाए जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी. सी द क्वेश्चन नंबर 3, that is the phosphorus is a very reactive non-metal. Next, metals are good conductor of heat and the electricity. Next, iron is more reactive than the copper. And last, metals react with acid to produce the hydrogen gas. जितनी भी मेटल्स होती हैं वो अगर एसिड से रिएक्ट करेंगी तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है. सी द next question, that is the true false. First is the generally non metals react with acid. तो ये आप क्या हो जाएगा, it is a false. Next, sodium is a very reactive metal, it is a true. Copper displaces zinc from zinc sulfate solution, it is also a false. And next is the coal can be drawn into wires, it is a false. See the question number 5, that is the some properties are listed in the following table. Distinguish between metal and the non-metal on the basis of these properties. ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज शो की गई हैं, आपको बताना है कि मेटल्स में क्या होगा और नॉन मेटल्स में क्या होगा. Now we are going to knowing about the right answer. See, the right answer is this. The appearance means दिखाई देना. Metals are lustrous whereas non-metals are dull. Hardness, all the metals are hard whereas all the metals are hard whereas the all non-metal are soft. Malleability, all the metals have the property of malleability whereas non-metals do not have. Ductility, all the metals have the property of ductility whereas non-metal do not have. Heat conduction, metals are good conductor of heat whereas non-metals are bad conductor of heat. Conduction of electricity, similarly metals are good conductor of electricity whereas non-metals are bad conductor of electricity. See the question number 6, it contain 4 part. First is the give reason. Aluminium foils are used to wrap food items. फूड आइटम्स को रैप करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल्स का यूज़ किया जाता है. सी द आंसर, एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज एल्युमिनियम इज़ हाईली मेलेबल. यानी एल्युमिनियम को पीट कर पतली चादर के रूप में इसे तैयार किया जा सकता है. इट कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट, मोरओवर इट डज नॉट रिएक्ट विद फूड. और ये फूड से रिएक्ट भी नहीं करता है, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट भी करता है. नेक्स्ट, इमर्सन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस. आप लोगों ने देखा होगा घरों में भी जो विंटर का टाइम होता है उसमें पानी को गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड का यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसे मेटल से ही क्यों बनाया जाता है. वी नो वेरी वेल बिकॉज मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द वाटर. सी
The right answer is the metals are good conductor of heat and the electricity. Therefore, immersion rod for metal heating liquids are made of metallic substances. Next, copper cannot displaces zinc from its salt solution. We know copper is a less reactive than the zinc. See the right answer. The reactivity of zinc is higher than copper. Only a metal of high reactivity can displaces a metal of lower reactivity from its salt solution. So copper cannot displaces zinc from zinc sulfate solution. Okay. Next, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन. तो कह रहे हैं कैरोसिन में सोडियम और पोटेशियम ये जो मेटल्स होती हैं इनको स्टोर क्यों किया जाता है? बिकॉज बोथ आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड व्हेन दीज एक्सपोज्ड इन एयर देन इट कैचेस फायर वेरी इजली. जब इन्हें हवा में रखा जाता है तो बहुत तेज़ी से ये आग पकड़ लेती हैं, बहुत जल्दी से. इसका आंसर देखते हैं. सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स. They can catch fire even when they come in contact with air, so they have to kept in kerosene. Okay, it is our question number 6. Next, question number 7. Can you store lemon pickle in aluminium utensils? कह रहे हैं कि एल्युमिनियम के बर्तनों में क्या आप नींबू के अचार को रख सकते हैं? तो नो, we cannot store lemon pickle in aluminum utensils. As metal react with acid to liberate hydrogen gas, the pickle can be spoiled. अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन में नींबू का अचार को रखेंगे तो वो बर्तन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि नींबू में एसिड होता है, और वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा जिससे अचार आपका खराब हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. In the following table, some substances are given in column first, in column second. Some uses are given. Match the item column 1 with those in column 2. यानी column 1 और column 2 में ये आपको मैच करना है. तो कौन किससे मैच करेगा? It is the right answer is this. गोल्ड ज्वेलरी बनती है. आयरन ज़्यादातर उपयोग मशीनरी में होता है. एल्युमिनियम रैपिंग फूड आइटम्स. कार्बन फ्यूल. कॉपर इलेक्ट्रिक वायर. मरकरी थर्मोमीटर. ओके, गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 9 देखें. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन कॉपर प्लेट. अगर कॉपर प्लेट पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाएगा तो क्या होगा? ऑलवेज इट फॉर्म द हाइड्रोजन गैस बिकॉज कॉपर इज अ metal, and when it react with dilute sulfuric acid then it form the hydrogen gas. Now see the equation. This is the copper and this is the sulfuric acid. When copper react with sulfuric acid it form the copper sulfate and form the hydrogen gas. Next, B is the iron nails are placed in copper sulfate solution. कह रहे हैं अगर कॉपर सल्फेट में आयरन नेल्स में होता है लोहे की कील, अगर डाल देंगे तो क्या होगा? इट इज़ अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन द कॉपर. देखिए, it is iron and it is the copper sulfate solution. Here iron is more reactive than the copper, then it displaces the copper from its salt solution and form the iron sulfate and the copper. Such type of the reaction is known as the displacement reaction. Okay, now see another question. Question number 10. See, Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. सलोनी एक लड़की है जिसने जलते हुए चारकोल के टुकड़े को एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया और उसमें से एक गैस कलेक्ट हो रही है. सी द फर्स्ट इज द हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस. उसे कैसे पता चलेगा कि इस जगह पर कौन सी गैस है? ठीक है. सी द आंसर इज द एड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब in which gas is collected. Now cover the test tube, shake it well. Test the solution with blue litmus and red litmus. Blue litmus turns red. The nature of gas is acidic. तो कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और उसको अच्छे से हिला दीजिए और उसके बाद आप उसको लिटमस पेपर से टेस्ट कीजिए.
अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है तो फिर उस जगह पर क्या है, वो एसिडिक है। ठीक, और अगर रेड लिटमस आपका ब्लू में चेंज हो जाता है तो फिर वो बेसिक है। ठीक, यहाँ पर एसिडिक होगा। सी द सेकेंड, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन, यानी कि उस जगह पे क्या क्या प्रोसेस हो रही है आपको उसका वर्ल्ड इक्वेशन बताना है। दिस इज द वर्ल्ड इक्वेशन, इसे ही वर्ल्ड इक्वेशन कहते हैं। कार्बन react with oxygen, it form the carbon dioxide. Okay, now question number 11, this is the last question. One day Rita went to jewelers shop with her mother. एक दिन रीता अपनी मम्मी के साथ एक ज्वेलर्स की शॉप पर गई। हर मदर गेव ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश, उसकी मम्मी ने जो है उस दुकानदार को अपने पुराने सोने के गहने पॉलिश करने के लिए दिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक, जब अगले दिन उसे ज्वेलरी वापस मिली, दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट, तब उन्हें पता चला कि उसके वज़न में थोड़ा सा कम है। कैन यू सजेस्ट अ रीज़न फॉर द लॉस इन वेट, क्या आप बता सकते हैं कि वो कमी क्यों आया? इसलिए आता है क्योंकि जो भी ज्वेलरी की शॉप पर जो पॉलिश होता है ऑर्नामेंट में, ऑर्नामेंट्स गहने, वो एक्वारीजिया, एक एसिडिक सोल्यूशन होता है एक्वारीजिया, उसी में डिप करते हैं। डिप करने की वजह से उनमें से ऊपर की लेयर रिमूव हो जाती है, जिससे कि गहने वो चमकने लगते हैं। सी द राइट आंसर, टू पॉलिश अ गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज डिप्ड इन एसिडिक कॉल्ड एक्वारीजिया। देखिए अभी मैंने आपको बताया, द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजॉल्व इन अ एसिड एंड इनर shiny layer is visible because of loss of upper layer of jewelry, it is weight is reduced। तो ऊपर की लेयर अगर हल्की सी निकल जाएगी तो उसका वजन क्या हो जाएगा, हल्का सा कम हो जाएगा। नाउ दैट्स ऑल, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन देन आस्क मी ऑन अ कमेंट सेक्शन।